Hello friends, welcome to problem solution of insolvency accounts. This question was asked in Saurashtra University examination in April 2019. फ्रेंड्स हम आगे बढ़े उसके पहले ये वीडियो पोज करके पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ ले ताकि समझने में आसानी हो। ये क्वेश्चन 2 स्लाइड्स में है। So hope friends you have gone through this question. आइए शुरू करते हैं। तो here Mr. Tushar has commenced this business on 1st of April 2013. उसकी जो इनिशियल कैपिटल यहाँ पे दी गई है 1 लाख रुपीज। आफ्टर दैट इंफॉर्मेशन अबाउट ड्रॉइंग इज अवेलेबल। उसने जो ड्रॉइंग किया है ₹8,000 पर ईयर। आफ्टर दैट फर्स्ट 3 years प्रॉफिट इज अवेलेबल 22,000। उसके बाद हमें इंफॉर्मेशन दी है कि ही डिडंट प्रिपेयर हिज अकाउंट्स फॉर नेक्स्ट 2 years। यानी कि उसके जो बाद के 2 साल है उसने उसमें अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं किए हैं। ही डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट ऑन 31st March 2018। Now here we are required to prepare his statement of affairs and deficiency account as on 31st March 18 from the given information। तो आइए इंफॉर्मेशन देखते हैं। दैट इंक्लूड्स सन्ड्री क्रेडिटर्स, देन मॉर्गेज लोन ओवर अ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, देन पार्टली सिक्योर क्रेडिटर्स। यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि ये जो क्रेडिटर्स है वो जो उसकी पॉलिसी है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी उसके सामने सिक्योर्ड है, जिसकी सरेंडर वैल्यू यहाँ पे है 18,000। देन आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर 2 months, then salary of 2 clerks for 2 months, after that municipal taxes, after that Mrs. तुषार्स लोन। अब ये जो लोन है उसकी जो वाइफ की है, मगर हमें ये कंसीडर करनी होगी बिकॉज दिस लोन इज फ्रॉम स्त्रीधन, सो वी हैव टू कंसीडर दिस इन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। After that bills discounted of ₹32,000 out of which expected to be dishonored 12,000। यानी कि ये जो बिल्स डिस्काउंटेड हुए थे उसमें 12,000 अभी भी पे करने हैं। Okay, next is freehold property, then machinery in bracket it is given that cost of machinery is 50,000 और अब तक का जो depreciation है वो है 15,000 rupees and estimated realizable value is available। After that second mortgage loan on freehold property is also given। Then there are 3 types of debtors here, good, doubtful और bad। bad मतलब के यहाँ वी आर नॉट गोइंग टू रिसीव अ सिंगल रुपी, जो हम बैड डेब्ट्स भी बोल सकते हैं। आफ्टर दैट डाउटफुल मीन्स इन सर्टेन पोर्शन ओनली वी विल रिसीव कैश, और गुड मतलब कि पूरी अमाउंट जिसके पास से हमें मिल जाएगी। आफ्टर दैट फर्नीचर एंड फिक्चर्स, आफ्टर दैट स्टॉक एंड लास्ट कैश ऑन हैंड। As per other information, Sri Tushar has gifted a cycle to his son Bhumit on 1st of January 18, which was estimated to realize 600। Okay friends, whether these transaction will come or not, so this transaction we have to consider। The reason is that we are going to prepare a statement of deficiency on 31st December 2018, और ये जो गिफ्ट दी गई हुई है वो दैट इज ऑन 1st of January 2018। यानी कि जब ये इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ है उसके पहले के 2 साल के अंदर ऐसी कोई भी ट्रांसफर हुई हो तो दैट वी हैव टू कंसीडर। तो यहाँ हमें ये गिफ्ट कंसीडर करनी पड़ेगी और वी हैव टू गेट इट बैक। आफ्टर दैट at last receivers expenses are available 2,400। तो आइए फ्रेंड्स let's solve this question। तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल we will discuss the important points given in the question। तो फर्स्ट point is date of business commencement, it is 1st of April 13। now date of given information or date of being him insolvent is 31st March 2018। यानी कि हम कह सकते हैं जो टोटल ड्यूरेशन है मिस्टर तुषार के बिजनेस का वो है 13-14 to 17-18, मतलब 5 years। profit available for initial 3 years only, it means we have no any kind of information about profit or loss
फॉर द लास्ट 2 years। इसका मतलब है कि हमें सबसे पहले ये जो लास्ट 2 साल के प्रॉफिट या लॉस है वो कैलकुलेट करने होंगे बाय प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। And the last point we have already discussed that gifted bicycle we have to consider it back as because it is a voluntary transfer. Okay friends, now we are starting with first working note, that is calculation of drawings. As per information given here, यहाँ पे average annual drawings जो है वो है ₹8,000। here the total duration is 2013-14 to 17-18, मतलब कि 5 साल यहाँ पे दिए गए हैं। तो we can say that जो total drawings है 5 साल का, तो ₹8,000 into 5 years, so the total drawings met by Tushar is ₹40,000. Okay friends, now we want to calculate the profit or loss of last 2 years. For that purpose we are going to prepare trial balance of Tushar from the given information. तो यहाँ पे लेफ्ट साइड डेबिट बैलेंसेस आएगी और राइट साइड आएगी क्रेडिट बैलेंसेस। तो डेबिट बैलेंसेस में क्या आएगा, तो ड्रॉइंग्स जो हमने अभी कैलकुलेट किया है, और असेट्स आएगी इन विच फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, मशीनरी, फिक्चर्स फिटिंग, स्टॉक, डेटर्स और कैश। और अब क्रेडिट बैलेंसेस में आएगा ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग कैपिटल, उसके बाद पहले 3 साल का प्रॉफिट, फिर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के ऊपर जो मॉर्गेज लोन है फर्स्ट एंड सेकंड दोनों आएगी, देन लोन फ्रॉम हिज वाइफ मिसेस तुषार वो भी आएगी, म्यूनिसिपल टैक्सेस, आउटस्टैंडिंग रेंट, सैलरी, देन सन्ड्री क्रेडिटर्स, और लास्ट में आएंगे पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अब फ्रेंड्स आपको दोनों तरफ टोटल करना है, तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि जो राइट साइड का टोटल है वो सबसे ज्यादा है 253,100। द सेम टोटल वी विल पुट हियर लेफ्ट साइड, तो हमें यहाँ पे जो बैलेंस मिलेगी 18,800। दिस इज द लॉस फॉर लास्ट 2 years, यानी कि जो पिछले 2 साल है उसका लॉस है, और वो अमाउंट है 18,800। ओके फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग फॉर द वर्किंग नोट 2। उसमें हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कैलकुलेट करेंगे एज पर लिस्ट ए। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। लेफ्ट साइड आएगा टोटल अमाउंट ऑफ दिस क्रेडिटर्स बुक वैल्यू, और यहाँ पे राइट साइड आएगा पेएबल अमाउंट, यानी कि जितनी अमाउंट उसे हमें पे करनी है। तो विल स्टार्ट विद द सन्ड्री क्रेडिटर्स, दैट इज 52,000। रेंट पूरी अमाउंट यहाँ पे आएगी 600। आफ्टर दैट आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ क्लार्क्स। अब फ्रेंड्स एज यू अवेयर दैट कि ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ क्लार्क्स होती है दैट वी हैव टू कंसीडर इन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स बट लिमिटेड टू ₹20 पर क्लार्क। अब यहाँ पे 2 क्लार्क है, तो एक क्लार्क की 20 रुपीज, यानी कि 2 क्लार्क की सैलरी 40 रुपीज जो है हमें प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में लेनी होगी। यानी कि रिमेनिंग अमाउंट जो है हम यहाँ पे दिखाएंगे। रिमेनिंग अमाउंट मतलब 800 माइनस 40, यानी कि 760 आएगी यहाँ पे एज अ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। आफ्टर दैट लोन फ्रॉम मिसेस तुषार वी हैव टू शो हियर बिकॉज दिस लोन इज फ्रॉम स्त्रीधन, तो ये पूरी लोन की अमाउंट यहाँ पे आएगी। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू शो बिल्स डिस्काउंटेड पेएबल, यानी कि जो बिल्स डिस्काउंटेड है उसके ऊपर हमें पे करने हैं 12,000, वो भी यहाँ पे हम दिखाएंगे। तो इस तरह से टोटल जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पेएबल है वो है 80,360। Okay friends, now we are going for list B that contains fully secured creditors। तो इसमें क्या आएगा, तो as given information जो फर्स्ट मॉर्गेज लोन ऑन फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, दैट अमाउंट इंक्लूड्स 12,000। उसमें से जो अमाउंट रियलाइजेबल है फ्रॉम फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वो यहाँ पे लिखेंगे 50,000। अब जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है उसमें से 50,000 आने वाले हैं, उसमें से 12,000 फर्स्ट लोन हम पे अगर कर दे तो रिमेनिंग एक्सेस अमाउंट बचेगी 38,000 फॉर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। अब ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी पे सेकंड लोन भी है, तो सेकंड लोन है उसकी अमाउंट है 20,000 और वी हैव अमाउंट ऑफ 38,000, तो वी कैन इजीली पे दिस सेकंड लोन ऑल्सो। तो 38,000 में से 20,000 रुपीज जो है वो हम पे कर देंगे। तो अब
देर इज नो अमाउंट फॉर दिस फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, वो सारे पे हो चुके हैं और उसके बाद भी हमारे पास एक्सेस अमाउंट है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की जो है ₹18,000 जो हमें ट्रांसफर करनी होगी राइट हैंड साइड इन द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में। Okay friends, after calculation of fully secure creditors, now we are going for the list C, that is partly secure creditors. It means these are the creditors who are not fully secured. तो आइए देखते हैं। तो हियर पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स आर 30,000। अब उसे हमें ये जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो सरेंडर करा के उसे हमें पेमेंट करना है। तो हियर द सरेंडर वैल्यू ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज 18,000, यानी कि आउट ऑफ 30,000 वी आर एबल टू पे ओनली 18,000। तो ये जो पार्टली सिक्योर क्रेडिटर्स है वो इतने अनपेड रहेंगे 12,000। Okay, after that we are going for the list D. These are the preferential creditors. तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में सबसे पहले आएगी सैलरी ऑफ 2 क्लार्क्स, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एज पर द लॉ यहाँ पे पर क्लार्क 20 रुपीज जो है यहाँ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में आने चाहिए। तो यहाँ पे 2 क्लार्क है तो 2 क्लार्क इंटू 20 यानी कि 40 रुपीज यहाँ पे आएंगे। आफ्टर दैट म्यूनिसिपल टैक्सेस भी जो है वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में आएंगे, पूरी अमाउंट 700। तो यानी कि टोटल प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हो गए 740 और ये जो अमाउंट है हमें पे करनी होगी। तो 740 वी हैव पेड। तो यहाँ पे हमने कुछ दिखाया नहीं है। ओके, नेक्स्ट वर्किंग नोट इज फॉर लिस्ट ई, कैलकुलेशन ऑफ असेट्स। तो असेट्स में हम दो वैल्यू कंसीडर करेंगे, फर्स्ट इज द बुक वैल्यू एंड सेकंड इज द एस्टिमेटेड टू रियलाइज वैल्यू। तो ये जो सेकंड कॉलम है एस्टिमेटेड वैल्यू, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो वी आर स्टार्टिंग विद मशीनरी। तो एज पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर मशीनरी उसकी जो टोटल वैल्यू वैसे तो है 50,000, बट उसके ऊपर अब तक का जो डेप्रीशिएशन है वो है 15,000 रुपीज। तो 50,000 में से ये डेप्रीशिएशन हम निकाल देंगे, दैट इज आवर बुक वैल्यू फॉर मशीनरी 35,000 और इसकी एस्टिमेटेड जो वैल्यू है वो है 16,000। आफ्टर दैट फिक्चर्स फिटिंग्स, तो उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू 1500, देन स्टॉक 12,000, देन कैश। तो यहाँ पे फ्रेंड्स याद रखिए ये जो कैश है इटसेल्फ, तो उसकी बुक वैल्यू और एस्टिमेटेड वैल्यू दोनों सेम होगी। देन गिफ्टेड साइकिल टू हिज सन। तो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ये जो गिफ्ट है वो वॉलंटरी कंसिडरेशन में आएगी, यानी कि ये हमें बैक लेनी होगी। तो उसकी जो वैल्यू यहाँ पे दी गई है 600, वी विल कंसिडर इट। तो इस तरह से यहाँ पे जो असेट्स की टोटल बुक वैल्यू है वो हमें मिली 66,000 एंड सेम वे एस्टिमेटेड वैल्यू जो है वो है 30,300। ओके फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग फॉर द लिस्ट एफ एंड दैट इज फॉर डेटर्स। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमें डिवीजन दिया गया है डेटर्स का, गुड, डाउटफुल और बैड। बैड मतलब जिसके पास से हमें कोई पैसे मिलने वाले नहीं है। आफ्टर दैट डाउटफुल, तो डाउटफुल डेटर्स टोटल बुक वैल्यू है 10,800, मगर उसके पास से हमें मिलेंगे सिर्फ 8,400। और गुड डेटर्स मीन्स उसके पास से हमें पूरी अमाउंट मिलेगी। तो वी कैन से दैट वी कैन एस्टिमेट टोटल 30,400 रुपीज फ्रॉम डेटर्स। Okay, now we are able to prepare statement of affairs for Mr. Tushar as on 31st March 2018. तो फ्रेंड्स ये जो स्टेटमेंट है सबसे पहले शुरू होगा जो लेफ्ट साइड से, इन विच फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद लिस्ट ए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। जैसा कि हमने कैलकुलेट ऑलरेडी कर लिया है वर्किंग नोट 2 में, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की अमाउंट यहाँ पे आएगी 80,360। After that we are going for list B, that is fully secured creditors, working note 3। तो जैसा कि हमने कैलकुलेट कर लिया, these are the fully secured creditors, तो उसको अब ऑलरेडी पे हो चुका है, यानी कि अब कुछ हमें पे नहीं करना है।
और ये जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स पे जो मॉर्गेज थी फ्री होल्ड असेट्स, तो उसकी एक्सेस अमाउंट यहाँ पे बची है जो 18,000 रुपीज, वो हम सामने ट्रांसफर कर देंगे। After that we are going for the list C. List C includes partly secured creditors as we have calculated in working note 4. तो partly secured creditors है 12,000 रुपीज और list D प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स थे 740, मगर ये जो क्रेडिटर्स है वी हैव ऑलरेडी पेड देम, तो यहाँ से हमें माइनस करने हैं ये 740 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। नाउ वी आर गोइंग राइट साइड, तो यहाँ पे आएगा सबसे पहले लिस्ट ई कैलकुलेशन ऑफ असेट्स। तो वर्किंग नोट 6 में ये कैलकुलेशन पूरा हमने दिखा दिया है। दिस कैलकुलेशन इंक्लूड्स द बुक वैल्यू ऑफ 66,000 एंड एस्टिमेटेड वैल्यू 30,300। सेम वे डेटर्स कैलकुलेशन वी हैव ऑलरेडी शोन इन वर्किंग नोट 7, तो उसकी बुक वैल्यू है 38,900 और एस्टिमेटेड वैल्यू है 30,400। देयर इज नो इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन रिगार्डिंग बिल्स रिसीवेबल। आफ्टर दैट वी विल एड हियर एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, जो कि हम यहाँ से ट्रांसफर करेंगे, दैट इज 18,000 रुपीज। तो अब तक का जो टोटल है एस्टिमेटेड वैल्यू जो हमें रियलाइज होने वाली है, तो ये टोटल होगा 78,700। अब उसमें से हम दो चीजें माइनस करेंगे। सबसे पहले तो हम पे करेंगे रिसीवर्स एक्सपेंसेस, तो रिसीवर एक्सपेंसेस एज गिवन इन द क्वेश्चन 2,400, और आफ्टर दैट एज वी हैव डिस्कस्ड पेमेंट ऑफ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स होगा यहाँ से डिडक्ट 740। तो ये दो अमाउंट हम माइनस करेंगे तो हमारे पास अब रिमेनिंग टोटल इनकम होगी 75,560। अब क्या करना है फ्रेंड्स, तो लेफ्ट साइड का ये जो कॉलम है पेएबल डेब्ट, उसका आपको टोटल करना है, तो उसका टोटल आएगा 92,360। The same total you have to put here right side 92,360, उसमें से ये जो टोटल इनकम है वो माइनस करनी है, डिडक्ट करनी है 75,560। तो जो रिमेनिंग आंसर है वो हमें मिलेगी डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी मतलब कि ये वही अमाउंट है जो मिस्टर तुषार पे नहीं कर पाएंगे। सो एज पर लिस्ट एच डेफिशिएंसी अमाउंट इज 16,800। Okay friends, now we are going for the deficiency account of Mr. Tushar as on 31st March 18। याद रखिए ये बिजनेस की शुरू से यानी कि 1 अप्रैल 13 से लेके 31 मार्च 18 तक का है। तो we will start with लेफ्ट साइड, जहां पे हम रखेंगे ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल आएगी 1 लाख। ही स्टार्टेड बिजनेस विथ 1 लाख। आफ्टर दैट एज पर इंफॉर्मेशन जो पहले 3 साल थे उसका प्रॉफिट आएगा 22,000। आफ्टर दैट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। नाउ व्हाई वी हैव टू शो दिस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, क्योंकि ये जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो खुद की होती है, पर्सनल होती है, बिजनेस की नहीं होती। ही ब्रिंग दिस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इन द बिजनेस टू पे हिज डेब्ट, इसलिए हमें यहाँ पे शो करना पड़ेगा। सेम वे दिस इज वॉलंटरी ट्रांसफर टू हिज सन गिफ्टेड साइकिल, वो भी हमें यहाँ शो करनी पड़ेगी 600। और लास्ट में अभी हमने जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर किया उसमें जो डेफिशिएंसी आई द सेम अमाउंट वी विल शो हियर 16,800। अब फ्रेंड्स हम जाते हैं राइट हैंड साइड, यहाँ पे क्या आएगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हियर रिकॉर्ड लॉस ऑफ लास्ट 2 इयर्स। तो पिछले 2 साल का लॉस जो हमने ट्रायल बैलेंस में कैलकुलेट किया था 18,800। आफ्टर दैट वी विल कंसीडर द अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स, तो वो आएगी 40,000। देन लॉस ऑफ बिल्स, यानी कि बिल्स पे हमें जो पे करने हैं एडिशनल 12,000, वो भी यहाँ पे आएंगे। आफ्टर दैट लॉस ऑन असेट्स, उसका क्या मतलब है, तो एज पर लिस्ट ई जो असेट की बुक वैल्यू थी 66,000, उसमें से हम उसकी रियलाइज्ड वैल्यू माइनस कर देंगे, यानी कि 66,000 की जो एसेट है उसके हमें पैसे मिले हैं सिर्फ 30,300, यानी कि लॉस ऑन असेट हुआ है 35,700। सेम वे लॉस ऑन फ्री होल्ड असेट्स,
याद रखिए फ्रेंड्स, फ्री होल्ड असेट्स हमने ये जो असेट का लिस्ट ई है उसमें कंसीडर नहीं किया था। अब फ्री होल्ड असेट्स है, उसकी बुक वैल्यू थी 90,000 एज पर गिवन इन द क्वेश्चन, और उसके पैसे हमें मिले हैं सिर्फ 50,000, यानी कि वी मेड लॉस ऑफ 40,000 ऑन फ्री होल्ड असेट्स। आफ्टर दैट लॉस ऑफ बैड डेब्ट्स ऑन डेटर्स, तो वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं लिस्ट ऐप में। जो टोटल डेटर्स थे उसकी वैल्यू, बुक वैल्यू थी 38,900, मगर डेटर के पास से हमें मिले हैं सिर्फ 30,400, तो जो डिफरेंस है 8,500 दैट इज बैड डेब्ट, तो वो लॉस यहाँ पे आएगा। और सबसे लास्ट आएंगे रिसीवर्स एक्सपेंसेस 2,400। ओके फ्रेंड्स, तो अब आप दोनों साइड का टोटल कर ले। ये अगर आपका जो क्वेश्चन सही है तो दोनों साइड का ये जो आंसर है वो सेम आना चाहिए, सेम लाइक बैलेंस शीट। तो यहाँ आ गया है आंसर 1,57,400 बोथ साइड।